So in yesterday's class, we started k-means algorithm, k-means clustering algorithm, and we said that McQueen had discovered this algorithm in 1967. Some people say that Lloyd did, according to a magazine article in 1952. And in k-means, each cluster is represented by the center of the cluster. So let's say that there is a collection of multiple points. Just a second, I will connect my pen tablet. Yeah. So let's say that there is a collection of points, and in this we have to let's say that we have multiple clusters. अगर एक data set है जिसमें multiple clusters हैं, ठीक है, and within that each cluster will have a center. ठीक है, यहाँ पे जैसे इसका ये center है, suppose इसका ये वाला center है इस cluster का. Given k number of clusters, suppose we have two clusters, we will have to select randomly k initial centers and we have to converge कैसे करना है, हमें ये दो काम करने हैं convergence के लिए. For example, we form the k clusters by assigning each data point to its closest centroid and बार बार हमें वो centroid निकालना है जब तक वो सेम ना आना शुरू कर दे. We also saw in the numerical example in the yesterday's class. I will open that slide, just a second. So this was it. इसमें हमने देखा था कल एक एग्जाम्पल था ये वाला. We had solved this example yesterday itself. इसमें हमने देखा था that A and B medicine versus C and D are divided into two clusters based on our process. तो जो हमने प्रोसेस देखा था वो प्रोसेस में हमने क्या किया था, we actually solved everything. इसमें हमने solve किया था and we found that according to our calculation C1 and C2 are consistent in iteration 2 and 3. क्योंकि हमें C1 C2 consistently मिल गए थे दो बार, तो we said that according to this my A and B is in group 1, C and D is in group 2. We solved this numerical yesterday only. So we have to continue about the k-means objective function. So according to you, वैसे तो ये सामने अब लिखा ही हुआ है कि ये हमारा जो होता है SSE सम स्क्वायर्ड एरर. दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन. इसमें हमने करना क्या है, हेयर माय CK इज द क्लस्टर. अब जैसे जो हमारे मल्टीपल क्लस्टर्स हैं, आई कैन नॉट राइट इन दिस, आई कैन with the annotation. Okay, so this CK is my cluster. अब सारे क्लस्टर्स हैं, सपोज मेरे क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 ऐसे करके मल्टीपल क्लस्टर्स हैं अप टू के. उन सब के कुछ सेंटर्स होंगे एंड वो सेंटर पॉइंट हमने बोला कि चलो xi है. हर सेंटर पॉइंट को हम उसके क्लस्टर सेंटर से मैच करवाएंगे एंड फॉर एवरी xi वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अकॉर्डिंग टू दिस. क्योंकि हम यहाँ पे एक्चुअल माइनस सेंटर वाला वैल्यू करके उसका एक सम ऑफ स्क्वायर एरर कर रहे हैं, क्योंकि ये एरर है, जो भी डिफरेंस आएगा दिस इज द एरर. और उसको अगर हम सम कर देंगे एरर को फॉर ऑल द क्लस्टर्स फ्रॉम 1 टू नंबर k clusters if there are k number of clusters. यहाँ पे लिखा हुआ है k means algorithm partition a dataset D of n objects into k clusters so that the objective function is maximized. ठीक है, in this we use sum of square error or the deviations of each sample from the center of the clusters to which it belongs. जितना भी वो सेंटर से दूर है उसको हम एरर को कैलकुलेट करेंगे, सबको ऐड करेंगे फॉर ईच क्लस्टर. एंड दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस थिंग. नाउ दिस above mean square error is called inertia. अब जो ये जो हमने ये फॉर्मूला देखा है, दिस इज कॉल्ड inertia in clustering. ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर एरर वाली चीज को वी से इनर्शिया. और अगर इसी इनर्शिया को मैं 1/n के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एवरेज हो जाएगा. ठीक है, एवरेज सम ऑफ स्क्वायर. तो उस चीज को हम बोलते हैं इसमें डिस्टॉर्शन. तो ये शायद अगली स्लाइड पे होगा.
लेट्स कंटिन्यू, क्या लिखा है above mean square error is called also called inertia and mean of the above function is called distortion. So यहीं पे लिखा हुआ है, अगर आप इसका मीन निकालोगे इस फॉर्मूला के साथ 1/n मल्टीप्लाई कर दो और मे बी 1/k बिकॉज देर आर k नंबर ऑफ क्लस्टर्स. सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस फॉर्मूला विद 1/k तो आपका जो ये वाला फॉर्मूला होगा दिस विल बिकम डिस्टॉर्शन. The SSE strictly decreases after we recompute new centers. इसका मतलब ये है बिकॉज यू आर अपडेटिंग योर सेंटर एवरी टाइम. ठीक है, उससे क्या होगा विद एवरी पासिंग इटरेशन अगर आप अपने सेंटर्स को अपडेट कर रहे हो आपका एरर कम हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका SSE सम स्क्वायर एरर हमेशा कम होगा in the k-means algorithm. ठीक है, because the new center of the cluster comes from the average of the all data points in the cluster, which actually minimizes the SSE. Any doubt in this slide? No, sir. ठीक है, so let's move to the next one. So how do we choose the value of k? There is one algorithm, elbow method. We have studied this elbow method earlier also multiple times in different algorithms. Elbow method में हमने क्या करना होता है, एल्बो मेथड का मतलब है कि हमें कुछ ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे हमारा इनर्शिया या फिर एरर मिनिमम आए. ऑल्सो इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारा वो वाला पॉइंट सेलेक्ट करो जिसके बाद वो नियरली लीनियर बन गया. अब देखो ये नियरली लीनियर बन गया इसके बाद, तो हम इसमें k इक्वल टू 3 सिलेक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ k सिलेक्ट हो जाएगा इन द k मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम. देखते हैं क्या लिखा है. सो देयर आर वैरायटी ऑफ वेज टू फाइंड द ऑप्टिमल नंबर फॉर k. अगर आपने k मींस करना है तो k कैसे करना है, सिलेक्ट k कैन बी सिलेक्टेड. फर्स्ट मेथड इज बाय एल्बो मेथड and because this is most popular तो इसमें करना क्या, in this method we consider number of distinct values of k. अलग अलग वैल्यूज ट्राई करो 1 2 3 4 up to 9 और मे बी up to 30 up to 50, जितना करना कर लो. बट उसमें आपको करना क्या है, यू हैव टू प्लॉट फॉर ईच वैल्यू ऑफ k द इनर्शिया वैल्यू. इनर्शिया क्या था हमारा, सम ऑफ स्क्वायर एरर. सम ऑफ स्क्वायर एरर को ही इनर्शिया बोला गया है. तो जो भी आप एरर प्लॉट करोगे ऑब्वियसली विद एवरी पासिंग इटरेशन आपका एरर भी कम होता जाएगा. और एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसके बाद हमारा नियरली लीनियर हो जाए. ठीक है, यहाँ पे ये लीनियर हो गया तो इस पॉइंट को अगर हम सिलेक्ट करते हैं, सो माई k विल बी 3. In this case, to determine the optimal number of clusters, we have to select the value of k at the elbow. That is the point after which the distortion on inertia starts decreasing in a linear fashion. तो linear वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है. For instance, in the figure we conclude that the optimal number is 3 for this particular example. ठीक है, तो एक तो ये एल्बो मेथड वाला टेक्निक हो गया. और कौन सा मेथड हो सकता है, एनी आइडिया? हाउ डू यू सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ k, और कोई मेथड कैसे हम कर सकते हैं, आप बताओ. क्या हम ये कर सकते हैं दैट अगर हम यहाँ पे हमारा सपोज सिलहाउट कोफिशिएंट वाला डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज ए वेरी फेमस टेक्निक आफ्टर एल्बो मेथड. दिस इज द सेकंड बेस्ट टेक्निक. इसमें क्या करते हैं हम, वी कैन आल्सो फाइंड द ऑप्टिमल नंबर यूजिंग द क्लस्टरिंग इवैल्यूएशन मैट्रिक. तो ठीक है, मतलब हमने एक तो टेक्निक देखी कि हमारा इनर्शिया कम हो रहा है और अगर मेरा इनर्शिया उसके बाद लीनियरली चल रहा है तो मैं उस मिनिमम पॉइंट को ले लेता था एल्बो मेथड में. बट वी हैव अदर मेथड्स आल्सो. क्लस्टरिंग के इवैल्यूएशन मैट्रिक्स थे which were Silhouette coefficient, Rand index, ARI, purity. ठीक है, ऐसे करके हमारे 4-5 थे. सिलहाउट कोफिशिएंट को अगर हम यूज करें, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ सिलहाउट कोफिशिएंट, डू यू रिमेंबर? In that we were actually doing I think there was average of summation of bi minus ai divide by maximum of bi and ai. तो जिन जो भी इसमें से मैक्स वैल्यू थी वो हम डिनोमिनेटर में रखते थे एंड बी आई माइनस ए आई करते थे. वेयर माई ए आई इज कॉल्ड द मीन ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद इन द क्लस्टर एलिमेंट्स. तो अगर मैं ए आई की बात करूं
ये क्या था, ये मीन था, किसका था, मीन ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद इन द क्लस्टर एलिमेंट्स। मतलब ये विद इन एक सिंगल क्लस्टर में होता है, ठीक है। ये ए आई था। बी आई क्या था, जो मेरा डिस्टेंस था, मीन मीन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द नियरेस्ट क्लस्टर। तो जो आपका करंट क्लस्टर है, इसका आप निकालते थे और क्लस्टर्स के साथ, सपोज मेरे मल्टीपल क्लस्टर्स थे, तो आप जितना भी मीन निकालोगे विद ऑल द अदर क्लस्टर्स, वो बी आई था, मीन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑल द ऑब्जेक्ट्स विद द नियरेस्ट क्लस्टर। तो जो भी आपका पास होगा, सपोज ये वाला पास था, तो आप सिर्फ इसके साथ निकाल लो, और इसके साथ निकालने के बाद उसका मीन निकाल लो, तो वो बी आई वैल्यू था। तो इसको हम ऐसे करके निकालते थे, ठीक है, वेयर माई दिस आई इज इक्वल टू 1 to n। तो सपोज n थे, तो यहाँ पे भी फिर n ही हो जाएगा। तो सिलाउड कोफिशिएंट तो यही था। तो अगर आप ऐसे करके सॉल्व करोगे, एंड इफ यू गेट द आंसर लाइक दिस, सपोज आपने के अलग अलग वैल्यू प्लॉट करे, 1 2 3 4 5, सपोज दीज वर माई के वैल्यूज विच आई वॉज एक्चुअली टेस्टिंग, और मैंने सिलाउड कोफिशिएंट प्लॉट किया, और वो ऐसे आया, ऐसे कुछ चलता जा रहा है। तो इस केस में कौन से वाली बेस्ट वैल्यू होगी, कम वाली के ज़्यादा वाली, एनी आइडिया, ऐसे करके वो प्लॉट होता अगर। ज्यादा वाली। हाँ, ज़्यादा वाली, बिकॉज सिलहाउड कोफिशिएंट इज बेटर व्हेन इट इज मैक्सिमम, ठीक है। तो मतलब फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे मेरा सिलहाउड कोफिशिएंट मैक्सिमम आएगा, हम वो वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें भी सपोज के इक्वल टू 3 ही सिलेक्ट हुआ, तो सिलहाउड कोफिशिएंट को भी प्लॉट करके देखा जा सकता है। जैसे उसमें अगर मेरा इनर्शिया प्लॉट कर रहे हैं, तो मिनिमम वाला देखना है, मतलब जहाँ पे कम हो रहा है उसके बाद लीनियर हो रहा है, तो वो कम वाला फर्स्ट पॉइंट पकड़ लो। ऐसे ही सिलहाउड कोफिशिएंट में मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है। एंड इन केस ग्राउंड ट्रुथ इज अवेलेबल, जनरली विच इज नॉट अवेलेबल। ग्राउंड ट्रुथ अवेलेबल का मतलब है कि आप फिर कंप्लीटली अनसुपरवाइज लर्निंग नहीं कर रहे, सुपरवाइज वाली कैटेगरी आ जाएगी थोड़ी सी। तो उस केस में हम एक्सटर्नल वैल्यूएशन मैट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं, रैंड इंडेक्स, एडजस्टेड रैंड इंडेक्स, प्योरिटी। तो ये वाले 3 मेथड्स अवेलेबल हैं, तो आप उसके बेसिस पे भी डिसीजन ले सकते हो। बट मैक्सिमम केसेस में सिलहाउड कोफिशिएंट ही यूज करते हैं। अगर आपने एल्गो मेथड नहीं करना, तो सिर्फ आउट कोफिशिएंट से काम हो जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द की पॉइंट्स इन के मींस एल्गोरिदम। तो इसके सबसे पहले तो लेट्स डिस्कस द एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ के मींस एल्गोरिदम। नाउ एफिशिएंसी हैज 3 थिंग्स, टी के एंड एन। दिस इज बिग O, ठीक है, बिग O कॉम्प्लेक्सिटी, टी के एन, दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी वेयर माई एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, K are the number of clusters and T is my number of iterations. तो इस केस में जनरली वी से, अगर मेरा K और T is very small compared to N, तब मेरा एल्गोरिदम एफिशिएंट है, तब मेरा K means clustering is efficient। एफिशिएंट कब है, अगर मेरा K and T are both very small compared to number of objects in the dataset, तब ये एफिशिएंट है, अदरवाइज ये एफिशिएंट नहीं होता। In fact, there are multiple limitations of K-means clustering। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहली जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है दैट इट ऑफन टर्मिनेट्स एट ए लोकल ऑप्टिमल। अब लोकल ऑप्टिमल पे ये टर्मिनेट करता है, इसका मतलब ये है कि ये लोकल मिनिमा में फंस जाता है, ग्लोबल मिनिमा नहीं ढूंढता। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे कुछ प्लॉट था, मैंने ऐसे करके कुछ प्लॉट्स बनाए हुए हैं। सपोज ये मेरा वो होता है SSE वाला, इनर्शिया वाला प्लॉट। तो कभी कभी क्या होता है, लोकल ऑप्टिमल का मतलब है कि हो सकता है कि आप यहाँ पे आके अटक जाओ, या फिर आप यहाँ पे आके अटक जाओ, रेदर देन आप यहाँ पे बॉटम पे हिट करो। ये मेरा ग्लोबल मिनिमा है, ये वाले मेरे लोकल मिनिमा है। तो लोकल ऑप्टिमल का मतलब है कि आप कभी कभी क्या करते हो, आप इस पॉइंट पे रुक के बोलते हो कि चलो मेरा हो गया, मैंने मिनिमम पॉइंट ढूंढ लिया। और ये क्यों होता है, बिकॉज आप अलग अलग मतलब एक
आप एक एजम्पशन लेके चलते हो जब भी आप कोई जैसे इनिशियलाइजेशन करते हो। हमारे पास दो चीज़ें होती थी। एक होता था के मीन्स में हम दो चीज़ें करते हैं, एक तो हम करते हैं उसका इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन इन ए वे, एक असाइनमेंट वैल्यू कर देते होते हैं इनिशियली, उसके बाद हम उसको अपडेट करते हैं हर बार। और अपडेट कैसे करते हैं कि हमारा वो मिनिमाइज हो जाए और छोटा हो जाए और छोटा हो जाए, जो हमारा सम स्क्वायर एरर है। तो जितना छोटा कर पाए उसके हिसाब से हम वैल्यू अपडेट करते चले जाते हैं। बट बिकॉज ऑफ दैट वो लोकल ऑप्टिमल हिट कर जाएगा और वो फंस जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए स्पेशली इसके जो पहले तो रीजन है वो तो यही है, एक तो कि आप MSE कैलकुलेट कर रहे हो, मीन स्क्वायर एरर, इट इज लीस्ट फॉर ए गिवन इनिशियलाइजेशन ऑफ क्लस्टर्स। तो मतलब इन ए वे, जो अगर आप ऐसे करके कुछ एरर निकाल भी रहे हो, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, या फिर आप सम ऑफ स्क्वायर एरर का मतलब ये मीन वाली चीज को हम डिस्टॉर्शन बोलते हैं, अगर आप इसके थ्रू कर रहे हो देन इट मीन्स दैट एक तो आपने फिक्स कर लिया अपने आप को डिपेंडिंग ऑन द सैंपल जो आपने सिलेक्ट किया है, प्लस आप एक रैंडम इनिशियलाइजेशन कर रहे हो। तो इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि यहाँ पे फिगर होगा। आई वांट टू शो दैट एग्जांपल के, हाँ ये रहा। पुअर इनिशियलाइजेशन मे कॉज मे लीड टू पुअर क्लस्टरिंग। मतलब यही है, सपोज यहाँ पे आपने जो इनिशियलाइजेशन की वो आपने ऐसे करके कर ली कि आपका रेड पॉइंट इनिशियल ये ले लिया और ब्लू वाला ये ले लिया, तो ये पुअर इनिशियलाइजेशन है। इसमें कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं कौन से दो क्लस्टर्स को आपस में इकट्ठा करूं। बट अगर आपने सपोज ये वाले 2 पॉइंट ले लिए थे, तो उसके बेसिस पे आपने जब पार्टीशनिंग करी तो पहले रेड वाला ऊपर वाला हो गया, ब्लू वाला नीचे हो गया। बट जब आपने उसको फिर रिकम्प्यूट किया तो धीरे धीरे आप इस स्टेज पे पहुंच गए कि आपका ब्लू वाला ये रह गया और बाकी सारा रेड हो गया। तो दिस इज काइंड ऑफ पुअर क्लस्टरिंग। और ये सीधा सीधा इस कारण हुआ बिकॉज आपके जो इनिशियल 2 पॉइंट्स थे वही गलत थे। ठीक है। ये भी हो सकता है कि सपोज आपने इन दोनों को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, या फिर आपने इन दोनों को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया इनिशियल 2 क्लस्टर पॉइंट्स। तो अगर आपने ऐसे वाली कोई हरकत करी तो आप अच्छे से क्लस्टरिंग नहीं कर पाओगे। तो एक तो ये वाली प्रॉब्लम है, द इनिशियल सेंट्रोइड्स आर रैंडमली इनिशियलाइज्ड, और उस चक्कर में इट मे नॉट लीड टू ग्लोबल ऑप्टिमल बट मे स्टक इनटू लोकल मिनिमम। तो मतलब यही है कि आप क्लस्टरिंग ढंग से नहीं कर पाओगे और आपका इनिशियलाइजेशन खराब होने के कारण सारा प्रोसेस ही खराब हो जाएगा। अ, तो यहाँ पे इसको ठीक करने के लिए एक सोल्यूशन निकला। सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट सोल्यूशन ऑफ दिस रैंडम इनिशियलाइजेशन इज, जस्ट अ सेकेंड, जो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन ये है कि आप क्या करो, रन द के मीन्स फॉर डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स ऑफ आइटरेशंस। पहली बात तो आप ये करो, रन के मीन्स फॉर डिफरेंट सेट ऑफ नंबर ऑफ आइटरेशंस। टेक डिफरेंट इनिशियल सेंटर्स। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो आपने करना क्या है कि आप, अगर आपके इक्वल टू ले भी रहे हो, आपने दो क्लस्टर लेने भी हैं, तो आप डेटा सेट में सपोज एक बार ये दो क्लस्टर्स को ले लो, फिर आप रैंडमली किसी और को ले लो, फिर आप रैंडमली में भी किसी और को ले लो। तो दूर दूर वाले अगर आप रैंडमली दो ले भी रहे हो, उससे क्या होगा कि एक तो आपने मल्टीपल इनिशियल क्लस्टर्स ले लिए, तो उससे आप मीन निकाल के काम करवा सकते हो। ठीक है, मतलब कि इसका क्लस्टर क्या आ रहा है, इसका क्लस्टर क्या आ रहा है, इसका क्लस्टर क्या आ रहा है, चाहे डेटा सेट सेम है। तो आपने मल्टीपल टाइम रन कर लिया। तो एक तो आप ये वाला टेक्निक लगा के भी इस प्रॉब्लम से बच सकते हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग, एक एल्गोरिदम्स हैं, वेरिएशंस हैं के मीन्स के, वेरिएशंस ऑफ के मीन्स इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। और उनमें से जो मेरे 3 नाम हैं वो हैं के मीन्स प्लस प्लस,
The other one is intelligent k-means, and the third one is genetic k-means. We will discuss k-means plus plus, ठीक है? k-means plus plus का देख लेते हैं यहाँ पे क्या मतलब है। ये चीज इनफैक्ट यहाँ पे लिखी हुई थी that there are many variations। अगर आपने बेटर इनिशियल क्लस्टर सेंट्रॉइड्स करने हैं, अगर ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आप के मीन्स इंटेलिजेंट के मीन्स प्लस प्लस या फिर इंटेलिजेंट के मीन्स या जेनेटिक के मीन्स यूज कर सकते हो। और अगर आपने डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव प्रोटोटाइप्स करने हैं फॉर द क्लस्टर्स, तो आप के मीडियन, के मीडियोइड्स, के मोड्स, ये वाला कब काम आएगा? इसका प्रॉब्लम है जो मिडॉइड्स वगैरह है, इसका मतलब ये है, ये वाली चीज, इस लाइन का मतलब ये है दैट इट इज अफेक्टेड बाय द आउटलायर्स। ठीक है, इसका मतलब आउटलायर्स से है। डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव प्रोटोटाइप्स फॉर द क्लस्टर्स ये कब करने हैं? अगर मेरे पास आउटलायर प्रॉब्लम आ रही है, जो कि के मीन्स का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बिकॉज जब भी आप मीन निकाल रहे हो, अगर आपके पास आउटलायर्स होंगे और बाय चांस आपने उसको एक सेंटर मान लिया आउटलायर वाले पॉइंट को, सपोज आपके पास ऐसा कोई डेटा सेट था, सारे ऐसे थे इकट्ठे, एक पॉइंट यहाँ पे था और आपने इसी को सेंटर ऑफ द क्लस्टर मान लिया, तो फिर वो पंगा हो जाएगा और वो के मीन्स के जो कैलकुलेशन करेगा उसमें आउटलायर का इफेक्ट आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट उससे हमारी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। टू सेव अस फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, हम के मीडियन यूज कर सकते हैं, ठीक है, के मिडॉइड्स यूज कर सकते हैं, के मोड यूज कर सकते हैं। वी विल डिस्कस फ्यू ऑफ देम, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस कर्नल के मीन्स और वेटेड के मीन्स ये भी हम कर सकते हैं टू अप्लाई द फीचर ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस, कि अगर आप ओरिजिनल डेटा सेट को ही शिफ्ट कर दो किसी और शेप में, ट्रांसफॉर्म कर दो फीचर्स को, तो उसके लिए हमारा वेटेड के मीन्स और कर्नल के मीन्स भी हम यूज कर सकते हैं। वी विल डिस्कस फ्यू ऑफ देम। देखते हैं क्या है। एक तो ये वाला प्रॉब्लम था कि आप पूरे इनिशियलाइजेशन करोगे। सो इनिशियलाइजेशन के हिसाब से पहले बात करते हैं। सो ओरिजिनल प्रपोजल जो अपना आया था, मैक्वीन ने दिया था इन 1967। He said that select the k seeds randomly and need to run the algorithm multiple times using different seeds. Seeds का मतलब है इनिशियल पॉइंट आपका हर बार डिफरेंट होगा, ठीक है, एंड यूज एडवांस वर्जन ऑफ के मीन्स। तो उन्होंने हमें बोला कि आप ये वाला यूज कर लो, उससे क्या होगा कि आपका रैंडम इनिशियलाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो के मीन्स देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। के मीन्स एल्गोरिथम क्या होता है, लेट्स सी। के मीन्स में फर्स्ट ऑफ ऑल इट केम इन 2007, नियरली आफ्टर 40 इयर्स, ठीक है। के मीन्स हमारा जो चल रहा था वो तो 1967 से चल रहा था। के मीन्स प्लस प्लस जो आया वो 2007 में आया, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द के मीन्स एल्गोरिथम इन द वे इट अपडेट्स द सेंट्रोइड्स। तो मेनली जो हमारा एल्गोरिथम है वो अपडेट स्टेप पे चेंज हुआ है, अदरवाइज बाकी सारा सेम है। देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। इसमें ये स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू रैंडमली सिलेक्ट द फर्स्ट सेंट्रॉइड फ्रॉम द डेटा पॉइंट्स, ठीक है। आप रैंडमली एक पॉइंट उठा लो, देन फॉर ईच डेटा पॉइंट कंप्यूट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट प्रीवियसली चोजन सेंट्रॉइड, ये भी ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा मेन है। सिलेक्ट द नेक्स्ट सेंट्रॉइड such that the probability of choosing a point as centroid is directly proportional to its distance from the nearest previously chosen centroid। इसका मतलब ये है कि आपने इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस वाला देखना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैक्सिमम डिस्टेंस वर्ड। पहले क्या था, सपोज हमने ऐसे कुछ पॉइंट्स थे, हम क्या करते थे कि हमने एक पॉइंट चूज किया, फिर हम उसका मैक्सिमम ऐसे करके डिस्टेंस निकालते थे, सबका डिस्टेंस निकाल लिया उसका, फिर उसमें से उसके डिस्टेंस का एवरेज निकाल के हम क्या करते थे, इसी चीज को अपडेट करते थे कि मेरा पॉइंट इधर की बजाय ये वाले को हम कहते थे कि चल ठीक है, अब से तू मेरा सेंट्रोइड है, बाकी सारे उसके आसपास हैं। ये था ओरिजिनल के मीन्स। बट नाउ के मीन्स प्लस प्लस में क्या हो रहा है, के मीन्स प्लस प्लस में वट एवर माई इनिशियल सेंट्रॉइड इज, लेट्स से मेरे पास दो क्लस्टर थे, उसमें मैंने ऐसे करके दो इनिशियल सेंट्रॉइड ले लिए, जो मेरे पॉइंट्स में से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। सपोज मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस इसके साथ था, ठीक है,
सपोज मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस इसके साथ था, तो अगर ये मेरा इनिशियल क्लस्टर था, मैक्सिमम डिस्टेंस वाला मेरा फाइनल क्लस्टर, फाइनल सेंटर ऑफ द क्लस्टर होगा। तो इसको मैं फाइनल वाला कैसे करूंगा? वी विल अपडेट द सेंट्रॉइड which is farthest from the centroid of that cluster. So if initial point was this, तो उसकी बजाय मैं farthest वाले को इसको सिलेक्ट करूंगा जो मेरा बिल्कुल बॉर्डर पे है, दूर है मेरे से। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो, अगर मेरे पास सपोज सेंटर में यहाँ कहीं था, तो इसमें से जो मैक्सिमम दूर होगा, सपोज ये वाला पॉइंट है, या फिर चलो हम कहते हैं ये वाला पॉइंट है एक, और ये वाला मैक्सिमम दूर है, तो हमने इसका ये वाला ले लिया। तो अगर मेरा इसका इनिशियल ये था, इसका फाइनल वाला इधर वाला होगा। तो हमने के मीन्स प्लस प्लस में सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया है कि जो हम अपना अपडेट स्टेप कर रहे थे उसमें वी टुक द सेंट्रॉइड विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द इनिशियल सेंट्रॉइड। ठीक है, यही एक चेंज है, बाकी सारा सेम है। It solves the problem of random initialization as the new centroid is having maximum probability proportional to the distance from all points. इसका मतलब यही है कि आप जो भी सिलेक्शन कर रहे हो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो इसका जो न्यू सेंट्रॉइड होगा वो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने के कारण दूर दूर हो जाएंगे, तो उससे हमारा और ज्यादा अच्छे से काम हो पाएगा। सिमिलरली एक के मिडॉइड होता है। के मिडॉइड क्यों काम आता है? के मिडॉइड हमारा काम आएगा हमारे आउटलायर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, one of the problem in k-means algorithm is that it is affected because of the outliers. अब उससे बचने के लिए what we do is we can recompute the center instead of using the mean. मतलब जो हमारा मीन था, मीन निकालने के कारण हमारा वो आउटलायर वाली चीज हमें अफेक्ट कर रही थी। तो उसकी बजाय हमने क्या किया, हमारे पास तीन ऑप्शन है। हम या तो के मिडॉइड कर लें, के मिडॉइड को हम पैम भी बोलते हैं, पैम का फुल फॉर्म है पार्टीशनिंग अराउंड मिडॉइड्स। या फिर हम के मीडियन कर सकते हैं, या फिर हम के मोड कर सकते हैं। सो दीज आर द थ्री मेथड्स। तो के मिडॉइड देखते हैं सबसे पहले। दैट टू हैंडल द आउटलायर प्रॉब्लम इन के मीन्स एल्गोरिथम, हमने के मिडॉइड का क्या सोल्यूशन ढूंढा? So this PAM algorithm came in 1987. It was given by these two people. K-means algorithm is sensitive to the outliers since an object with an extreme value may substantially distort the distribution of data. ठीक है, तो K midroid क्या करता है? Instead of taking the mean value, uses the midroids. ठीक है, which is the most centrally located object in the cluster. तो midroids क्या होते हैं? It is the most centrally located object in the cluster. तो वो अपनी तरफ से प्रॉपर सेंटर के आसपास अगर कोई पॉइंट होगा तो उसको पकड़ लेगा, उसको बोलेगा कि चल तू मेरा मिडॉइड है। रेदर देन आप इन सब का मीन निकालो, आप सेंटर के आसपास का पॉइंट पकड़ लो, उसको मिडॉइड बोलते हैं। सो पैम एल्गोरिथम वर्क्स एज फॉलोज। अब ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। सो इनिशियली सिलेक्शन ऑफ द मिडॉइड इज रैंडम। ठीक है, ये रैंडमली चूजन होता है। स्टार्ट्स फ्रॉम एन इनिशियल सेट ऑफ मिडॉइड्स, रैंडमली सिलेक्ट हो जाएगा मिडॉइड इनिशियली। After that, you have to repeat until the convergence or the fixed number of iterations. Assignment कैसे करनी है? Assign the data point to the nearest midpoint. तो जो भी आपका असाइनमेंट होगा, जो भी आपने वैल्यू असाइन करनी है, जनरली आप नियरेस्ट मिडॉइड को वैल्यू दे दोगे। और अपडेट करते हुए वी हैव टू फाइंड वन ऑफ द नॉन मिडॉइड ऑब्जेक्ट एज रिप्लेसमेंट सच दैट हमारा सम ऑफ स्क्वायर एरर कम हो जाए। यहाँ पे यही लिखा होगा, रिप्लेस ईच मिडॉइड in each cluster by one of the non-midoid of the same cluster. आप उसी क्लस्टर के अंदर, अब एक तो पॉइंट आपने मिडॉइड बोल दिया, बाकी सारे जितने भी पॉइंट्स हैं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, अगर उस मोमेंट पे अगर मेरा एक पॉइंट मिडॉइड पॉइंट है तो बाकी सारे नॉन मिडॉइड हैं। तो उन नॉन मिडॉइड में से हमने एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना है जिससे हमारा सम ऑफ स्क्वायर एरर इंप्रूव हो जाए, मतलब एरर मेरा कम हो जाए। ठीक है, तो दिस इज द मेन एजेंडा बिहाइंड द के मिडॉइड्स मेथड। और इसमें इसमें हमारा आउटलायर वाला प्रॉब्लम कैसे हैंडल हो जाएगा, क्या आप बता सकते हो? अगर मैंने इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मीन वैल्यू मैंने मिडॉइड ले लिए, तो हम इसको आउटलायर से कैसे बचा लेंगे?
हाँ जी, एनी आइडिया? नो। अब देखो, जो हमारा मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू में मैंने यही बोला था कि अगर आप आउटलायर को लेके मीन निकाल रहे हो, फिर आपका ओवरऑल वैल्यू तो अफेक्ट होएगा ही। अगर कोई पॉइंट बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू लेके बैठा लगी, तो आपकी ओवरऑल वैल्यू, वो ओवरऑल एवरेज आपकी खराब कर देगा। रेदर देन अगर आप सेंटर ऑफ द क्लस्टर के आसपास रहोगे और उसको मिडॉइड के साथ काम करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली आउटलायर से बच जाओगे। ठीक है, ये मेन रीजन था। एंड वी नाउ ऑल्सो नो दैट हाउ डू वी अपडेट द वैल्यू। मेन एजेंडा यही है कि आपने सपोज एक मिडॉइड ले लिया वैल्यू, आप बाकी बचे हुए पॉइंट्स में से कोई ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करो जिससे मेरा एस एस ई इनर्शिया वाला जो वैल्यू है वो कम हो जाए। ठीक है, तभी हम उसको मिडॉइड अपडेट करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। नाउ दीज आर द फ्यू की पॉइंट्स ऑफ के मिडॉइड। इसमें इट वर्क्स इफेक्टिवली फॉर स्मॉल डेटा सेट्स। अब इसमें ये प्रॉब्लम चक्कर ये पड़ता है कि ये ना स्केल नहीं कर सकते हम ज़्यादा अच्छे से। वाई? बिकॉज इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑफ ऑर्डर दिस, स्क्वायर आ जाता है इसमें। तो ये एक तरह का ओ एन स्क्वायर वाला कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, ये क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बन गई इसकी। बिकॉज इसका ये जो फॉर्मूला है, ऐसे करके स्क्वायर आ रहा है इसमें, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हाई है, इसको हम स्केल नहीं कर सकते, क्योंकि जितना बड़ा आप नंबर लेके जाओगे डाटा सेट में, उतना ही ज्यादा ये टाइम ज्यादा लेगा। तो दैट्स वाई के मिडॉइड इज यूज ओनली फॉर द स्मॉल डाटा सेट्स, नॉट फॉर द लार्ज डाटा सेट्स। इसको इम्प्रूव करने के लिए दो मेथड्स आए, क्लेरा एंड क्लैरेंस। क्लेरा ने क्या किया, उसने पैम रन किया बट ऑन रैंडम सैंपल्स। मतलब उसने छोटे छोटे सैंपल ले लिए पूरे डेटा सेट में से। ठीक है, और बड़े डेटा सेट के छोटे सैंपल्स लोगे, तो इसने ऐसे करके सैंपल का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि सैंपल छोटा था, तो ये ओवरऑल एफिशिएंट होगा, बेटर होगा फ्रॉम द प्रीवियस मेथड। स्पेशली क्योंकि यहाँ पे अब ये वाला n माइनस के वाली चीज का स्क्वायर नहीं, सिंपल ये लीनियर बन गया। एंड देन क्लैरेंस में क्या हुआ, यू आर एक्चुअली वर्किंग with the randomized sampling, resampling. It ensures the efficiency and quality. ठीक है, तो मेनली यही था कि के मिडॉइड्स में ये वाले जो हमारे वेरिएशंस आए हैं, जनरली हमारा के मिडॉइड यूज होता है स्मॉल डेटा सेट के लिए, पर अगर आपका डेटा सेट बड़ा है तो आप क्लैरा या क्लैरेंस को यूज करो। ठीक है, स्पेशली क्लैरा का तो फुल फॉर्म ही ये था क्लस्टरिंग फॉर लार्ज डेटा सेट्स। एंड उसका भी यही है, क्लस्टरिंग फॉर लार्ज डेटा सेट यूजिंग रैंडम इनिशियलाइजेशन। तो रैंडमाइज रीसैम्पलिंग यहाँ पे जो हो रही है, तो ये हमारा क्लैरेंस है, क्लैरा। दीज आर द टू efficient PAM methods or the efficient k-midioid methods. Now continuing, there is k-median method also. K-median method क्या करता है? It is also used for handling the outliers only. हमने जो अभी देखा था वो क्या कर रहा था, वो मिडॉइड्स था। वो हम क्या करते थे, हम सेंटर ऑफ द डेटा सेट के पास जाते थे और उसके आसपास का पॉइंट पकड़ के कहते थे कि ये मेरा मिडॉइड है, उसके बेसिस पे हमने काम करना है। बट आप अगर मीडियन भी ले लोगे, now median is also not much affected by the outliers. ठीक है, medians are actually less sensitive to the outliers compared to mean values. And for instance, median salary is less affected as compared to the mean salary of a large firm. ठीक है, अब अगर आपके पास कुछ एरे है, सपोज 1 2 3 4 एंड मे बी 50 60 70 80 ऐसे कुछ है। ठीक है, और बीच में आप कर लो सपोज 10, तो इसका मीन कितना आएगा? मीन आएगा इसका, कितने एलिमेंट्स हैं ये हैं 9, तो 280/9। ठीक है, नियरली 31 के आसपास मीन आया, पर इसका मीडियन आया 10। ठीक है, तो आपका जो ये बड़े वाले वैल्यूज हैं, ये आपके मीन वाले मेथड में तो आपकी वैल्यू को ऊपर लेके जा रहे हैं, पर मीडियन में आप नियरली वैल्यू भी ठीक ठाक डिसेंट वाली ले रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द डेटा सेट, कि आपका डेटा सेट कैसा भी है। वही चीज यहाँ पे लिखी है, जो आपकी मीन है वो ज्यादा अफेक्ट होती है रेदर देन मीडियन। ठीक है, सो इन के मीडियन करना क्या है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मीन वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द क्लस्टर रेफरेंस,
मीडियन लेके चलो, एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी लाइक दिस। जो इनिशियल हमारा एल्गोरिदम था उसमें हमने यहाँ पे मीन वैल्यू लिखी थी मीडियन की बजाय, बाकी सारा यही था हमारा जो इनर्शिया वाला फॉर्मूला था। सो इन दिस फॉर्मूला द अपडेटेड थिंग इज that we have to use the median value now in the objective function. This is my objective function. ठीक है, some square error for the clustering using the median. And also k median function uses the L1 normalization, or you can say Manhattan distance, to assign the data points to the nearest median. So you have to remember this, that in k median we use the L1 normalization method. ठीक है, तो ये k median था, and k median is also effective in handling outliers only. इसके कुछ पॉइंट्स हैं, व्हाट यू हैव टू डू इज, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक अपडेट वाले में, असाइन और अपडेट वाले में ही चेंज होगा। ठीक है, सिलेक्ट द के पॉइंट्स एज द इनिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट्स, इनिशियल के मीडियंस। ठीक है, आप कुछ इनिशियल पॉइंट्स ले लो। करने वही दो काम है, असाइनमेंट और अपडेट। असाइनमेंट में क्या कर रहे हो, आप नियरेस्ट मीडियन को लेके चलोगे एज ए इनिशियल वैल्यू, एंड देन यू हैव टू कंप्यूट recompute the median of each cluster using the median of the data points in the individual clusters. तो आप हर बार individual clusters का median निकालोगे और फिर आप अपने median को update करते चले जाओगे based on that. Let's talk about the third limitation. ठीक है, third limitation ये है that k-means cannot handle non-numerical data. अगर आपके data set में categorical data है, let's say small, medium, large, ऐसे कुछ करके data set में values लिखी हुई हैं, तो आप उसका के मीन्स तो नहीं निकाल सकते, आप उसकी कोई एवरेज नहीं निकाल सकते, मीडियन नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हमारा यूज होता है के मोड। के मोड का मतलब है कि हम मेजॉरिटी देखेंगे कि कौन सी वाली कैटेगरी की है। सो वी हैव टू मैप द कैटेगोरिकल वैल्यूज टू न्यूमेरिकल वैल्यूज। मैपिंग दिस दिस कैटेगोरिकल वैल्यू टू दिस डज नॉट जनरेट द क्वालिटी क्लस्टर्स। आप जनरली क्या करते थे, आप इसको रिप्लेस कर देते सपोज 1 2 3 के साथ, बट दैट डज नॉट actually give me good quality of clusters. तो उसको ठीक करने के लिए we thought that चलो ठीक है, k mode भी ट्राई करके देख लेते हैं। k mode is an extension of k means, और mode का मतलब वही होता है कि मेजॉरिटी देखनी है। तो k median एल्गोरिदम, इनफैक्ट ये मीडियन नहीं होगा, यहाँ पे मोड आएगा। k mode algorithm works in the following steps. Select k points as the initial representative methods. Initially k mode वैल्यू ले लो, और हमने अपडेट और असाइन करना है क्या, इसमें हम हैमिंग डिस्टेंस यूज करेंगे, जैसे मैनहट्टन डिस्टेंस था पहले। अब इस बार हम हैमिंग डिस्टेंस यूज करेंगे। असाइन द डेटा पॉइंट्स टू द नियरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव बेस्ड ऑन द हैमिंग डिस्टेंस। रिकम्प्यूट द मोड ऑफ ईच क्लस्टर, दैट इज ईच फीचर शुड हैव मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स। ठीक है, जो भी आपका आप क्लस्टर, हर क्लस्टर के अंदर जाओगे वन बाय वन, आप उसका मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स को पिक करोगे, जो मेजॉरिटी होगा आप उसको एज ए मोड वैल्यू असाइन कर दोगे। एंड ए मिक्सचर ऑफ कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल फीचर्स uses k prototype. अब क्या होता है that it is actually one of the interview question, आपको ये आ सकता है। k mean क्या होता है, k mode क्या होता है, k proto क्या होता है, k prototype। ठीक है, mean हमें सबको पता है, it is used for taking the mean and then based on that we take the cluster center, ऐसे करके हम चलते रहते हैं। k mode में we have seen कि हमने क्या करना है, हर बार हमने इसमें मोड वैल्यू साइन करनी है, और हम हर क्लस्टर का मोड लेते चले जाएंगे। एंड इट इज यूजली हेल्पफुल व्हेन वी हैव द कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, के प्रोटो में क्या होता है, के प्रोटो में आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हो। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ के मीन्स एंड के मोड। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपका के प्रोटो बन जाएगा, एंड इट इज एक्चुअली हेल्पफुल इन हैंडलिंग बोथ द कैटेगोरिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल फीचर्स। कैटेगोरिकल के लिए के मोड है, नॉर्मल न्यूमेरिकल फीचर्स के लिए के मीन है। सो के प्रोटोटाइप इज वेरी हेल्पफुल फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो के मीन, के मोड, के प्रोटो कुछ भी आ जाए, नाउ यू कैन हैंडल दैट। सो दिस इज कर्नल के मीन, एंड इन दिस एल्गोरिदम जो हमारा के मीन्स एल्गोरिदम होता है, इट कैनॉट बी यूज्ड टू डिटेक्ट द नॉन कन्वेक्स क्लस्टर्स। तो इसका मतलब क्या है, लेट्स सी, इट कैन ओनली डिटेक्ट द क्लस्टर्स दैट आर लीनियरली सेपरेबल। अगर ऐसा कुछ शेप होगा, ये वाला है मेरा
कन्वेक्स शेप क्लस्टर, ये है मेरा नॉन कन्वेक्स शेप क्लस्टर। तो कन्वेक्स शेप का मतलब है दैट इट कैन ओनली डिटेक्ट क्लस्टर दैट आर लीनियरली सेपरेबल। अब यहाँ पे अगर मैं लीनियरली सेपरेट कर पा रहा हूँ, वो उसी चीज को डिटेक्ट करता है हमारा के मींस। कन्वेक्स शेप क्लस्टर्स आर दोज इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स लाई कंप्लीटली इनसाइड द क्लस्टर। ठीक है, अब क्या मतलब है, जो हमारा कन्वेक्स शेप है वो हमारा, अगर हम इसको दो पॉइंट्स को जोड़ भी रहे हैं, अगर हमने ये रेड वाले को सपोज येलो के साथ जोड़ा, तो ये मेरा क्लस्टर के अंदर है। पर इस केस में ये पूरी की पूरी लाइन अंदर नहीं है, कुछ ना कुछ नॉन कॉन्वेक्स आ गया, और हमारी अगर हमने दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, इस कोने को इस कोने के साथ ज्वाइन किया, तो हम आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं, हम इसके अंदर नहीं रह रहे क्लस्टर में। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, इसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्वेक्स क्लस्टर। ठीक है, इस केस को के मीन्स हैंडल नहीं करता, एंड फॉर दैट वी विल यूज कर्नल के मीन। ठीक है, project the data onto high dimensional kernel space. This concept has been taken from the SVM. जैसे हमारा SVM होता था, SVM में भी हम यही करते थे, that we had kernel SVM, उसमें हम नॉन लीनियर SVM की बात करते थे कि हम अपने डेटा सेट को हाई डिमेंशनल स्पेस में ले जाएंगे, एंड देन वी कैन परफॉर्म द के मींस क्लस्टरिंग। मतलब वहां पे हम SVM तभी अप्लाई करते थे उसको हाई डिमेंशनल में कन्वर्ट करके, और वही चीज यहाँ पे हमने आइडिया लगाया है that we are converting our original data set into high dimensional space and then perform the k-means clustering। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे दो स्टेप हैं। map the data points in the feature space to a high dimensional space using the kernel function। for example, आपके पास ऐसा कुछ डेटा सेट था, SVM वाली एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप ऐसे करके कुछ डेटा सेट था और आप इसको सेपरेट करना चाहते थे। अब ऑब्वियसली इस चीज को मैं लीनियरली सेपरेट नहीं कर सकता। अगर मुझे इसको सेपरेट करना होता, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, तो मैं क्या करता, ऐसे लीनियरली सेपरेट कर देता। पर यहाँ पे मुझे ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बनाने के लिए इसको मुझे हाई डिमेंशनल में लेके जाना पड़ेगा। इस डाटा सेट को अगर हाई डिमेंशनल में लेके जाऊंगा तो मैं इसको शायद ऐसे बना सकता हूँ, प्लस 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 प्लस, और जो साइड वाले माइनस वाले थे, तो मैं उसको ऐसे कर देता हूँ कि चलो तो एक तरह का हमने ऐसे कुछ करके हाई डिमेंशनल में ले गए। ठीक है, हमने उसको नॉर्मल रखने की बजाय ऐसे कर दिया कि जो हमारे माइनस वाले थे वो नीचे रह गए, प्लस वाले ऊपर चले गए। तो अब हम इसको लीनियरली सेपरेट कर सकते हैं। अगर जस्ट इमेजिन कि आपने प्लस से पकड़ के, इस पॉइंट से पकड़ के इसको ऊपर को कपड़े को खींच दिया, तो प्लस वाले ऊपर आ जाएंगे, माइनस वाले नीचे रह जाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव चेंज द डायमेंशन। तो वही चीज हमने यहाँ पे करनी है, वी हैव टू चेंज द कर्नल फंक्शंस, एंड उससे क्या होगा कि फिर हम अप्लाई के मींस क्लस्टरिंग हम कर सकते हैं, बिकॉज नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू हाई डिमेंशनल, और उसको हम लीनियरली सेपरेट भी कर पाएंगे, जो इनिशियली नहीं कर पा रहे थे। उसका एग्जांपल यही है, एग्जैक्टली वैसे ही कुछ यहाँ पे बना हुआ है। अगर आपने ऐसे वाले क्लस्टर्स बनाने थे, तो लीनियरली अगर आप सेपरेट करते, तो आप शायद ऐसे करके कर देते कि चलो ऐसे कोई लाइन बना लो, इधर वाले अलग क्लस्टर है, इधर वाला अलग क्लस्टर है। बट अगर आप उसको के मीन्स की बजाय गॉसियन के मीन्स लगाओगे, गॉसियन के मीन से क्या हुआ, आपने सेंटर से पकड़ के इसको ऊपर को खींच दिया, और आपकी ये वाली चीज ऊपर आ गई और बाकी सारे नीचे रह गए। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम गॉसियन कर्नल के मीन्स लगा सकते हैं। ठीक है, एंड ये नियरली वही चीज है जैसे हमने SVM में भी किया था, हाई डिमेंशनल वाला। सम ऑफ द अदर कर्नल फंक्शंस आर गॉसियन रेडियल बेसिस। ठीक है, ये बेसिस होगा, बेस नहीं है। गॉसियन रेडियल बेसिस का फॉर्मूला ये है, सिमिलरली लीनियर कर्नल का ये है, पॉलिनोमियल, sigmoid, log। So all these kernel functions have also been taught in the SVM। तो different kernel functions available हैं अपने पास, and we can use all those kernel functions to convert the uh, original dataset into high dimensional space so that we can implement the k-means clustering। ठीक है, let's see, this is the example, so we will discuss this example in the next class। That's all for today, I am ending the lecture for now, thank you।